ہم خدا باپ کی شکر گزار ہیں کہ ہم خدا کے گھر کے اندر موجود ہیں. آئیے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم باپ بیٹا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولیں گے اور عہد نامہ عتیق میں سے پرانے عہد نامہ میں سے یوئیل نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب اور ہم اس کی 15ویں آیات مقدسہ کو یوئیل نبی کا صحیفہ 2 باب اور 15 آیت کو ہم زندہ خدا کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے. اور آج کا ہمارا موضوع ہوگا دعا اور روزے کی برکات. کیا عنوان ہوگا؟ دعا اور روزے کی برکات. آمین. اوپر رکھ لیں. دعا اور روزے کی برکات آج ہمارا موضوع ہوگا. آئیے یوئیل دوسرا باب اس کی 15 آیت کو دیکھیں. گفتگو نہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو اور مقدس محفل فراہم کرو. تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے. کاہن یعنی خداوند کے خادم بیوٹی اور قربانگاہ کے درمیان گریہ زاری کریں اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. آمین. کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین. یوئیل نبی کی کتاب آج ہم اسی کتاب میں ہی رہیں گے. کوشش کریں گے اس سے باہر نہ جائیں. یہ کتاب ہمیں سمجھنے کے لیے بھی تاکہ ہم اس کو سمجھ بھی سکیں. تو یوئیل نبی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یوئیل کے نام کا مطلب ہے یہوہ خدا ہے. کیا ہے؟ یہوہ خدا ہے. اس کتاب کو ہم نے بارہا دفعہ پڑھا ہوگا لیکن آج ہم اس کتاب کو اس انڈرسٹینڈنگ میں سمجھتے ہیں. یہ کتاب اس کتاب کا جو آدھا حصہ ہے ہم آج اس پر بات کریں گے. کس پر بات کریں گے؟ آدھا حصہ. ہاں، جو اگلے والا حصہ ہے ہم اس پر بات نہیں کریں گے. اگلا جو ہے اس کا تھیم جو ہے اور بدل جاتا ہے. لیکن جہاں پر بات ہو رہی ہے اب ہم نے یہاں پر اور ترتیب کے لحاظ سے بھی اگر بات کرتا جاؤں یہ انبیاء اصغر کیونکہ کتاب مقدس کو میں نے پچھلے دنوں کے اندر حیدرآباد کے اندر تھا اور میں نے دی بائبل عنوان کو پڑھایا تھا جس میں نے بہت سی باتیں جو ہے ہم نے بات کی تھی خدا کے کلام میں سے کہ اس کتاب کی جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں عہد نامہ عتیق کو جدید کو تو اس کی جب ڈیوائیڈیشن کے اندر جب اس کی کتابوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر یعنی بڑے نبی اور چھوٹے نبی. تو چھوٹے نبی جو ہیں جن میں یوئیل جو ہے یہ بھی ایک چھوٹا نبی ہے جس کی کتاب اور خدمت کے معاملے میں ایک جو حدود بندی کی گئی. تو یہ دوسری کتاب ہے انبیاء اصغر چھوٹے نبیوں کی فہرست میں سے. کون سی کتاب ہے؟ دوسری. فہرست کے لحاظ سے اگر آپ اس پر ہم پھر کبھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ اس کی چینجنگ جو ہے ترتیب کون کون سے نبی کی جو ہے اس دوران میں آیا تو اس پر بات ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم اور یہاں پر اس کے بارے میں زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں. جتنے بھی ریسرچر ہیں تحقیق کرنے والے ہیں ان کا کہنا ہے. لیکن تھینکس گاڈ اس نے اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیا. جب پہلے باب کو ہم پہلی آیت سے پڑھ رہے ہیں خداوند کا کلام جو یوئیل بن فتوئیل پر نازل ہوا یعنی پھر اس نے اپنے باپ کا انٹروڈکشن کرایا اور بہت سے لوگوں کی کیا صلاحیت تھی. یہ یروشلم کے رہنے والا تھا. اب ہم ان باتوں کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے. اب جب ہم اس کے پہلے باب کو دوسری آیت سے اگر اس کو دیکھیں تو آج کیوں ضرورت ہے؟ پہلی بات یہ کتاب ہمیں بیان کرتی ہے ہمیں دعا اور روزے کی ضرورت کیوں ہے. پہلی بات ہمیں
روزے کی ضرورت کیوں؟ اس کے اندر بڑا پیغام ہے. یہ کیوں نیڈ ہے ہمیں؟ کیونکہ یاد رکھیے کتاب مقدس میں مسیحیت کے اندر جو ہے وہ روزہ جب بھی رکھا جاتا ہے اس کے پیچھے روزہ رکھنے والے کا کوئی نہ کوئی روحانی مقصد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جسمانی مقصد میں نے بات نہیں کی. اس کی بات کی ہے اس کا روحانی مقصد ہوتا ہے. جب بھی مسیحیت کے اندر، کیونکہ روزے کا جو معیار ہے مسیحیت کا وہ بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، کسی کو دیکھ کے نہیں ہوتا، یعنی کچھ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. اور اس کا مقصد جو ہے کتاب مقدس بار بار زور دیتی ہے کہ اس کے لیے روحانی نیت کا ہونا، روحانی انڈرسٹینڈنگ کا ہونا اور روحانی رویے کا ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں ایسے کرداروں پر بھی بات کی گئی ہے جنہوں نے نیت جن کی ٹھیک نہیں تھی، جن کے رویے ٹھیک نہیں تھے. آپ کو ایک واقعہ ذہن کے اندر آتا ہوگا، اس وقت جب اخیب بادشاہ جو تھا اس نے اس کے ساتھ ایک قریب جگہ لگتی جس کو وہ خریدنا چاہتا تھا، لیکن جو نبوت کا کھیت تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں اپنے باپ دادا کی میراث بھیج نہیں سکتا. پھر اخیہ جو اس کی بیوی ایزبل تھی اس نے ایک چال چلی. کیا چلی اس نے؟ پہلے اس نے کام کہاں سے شروع کیا؟ روزے سے. اس نے کہا روزہ کی منادی کرو. پھر روزہ رکھنے کے بعد عمل کیا گیا، اس میں سیاست کی گئی، اس میں ایک شخص کو ڈی گریڈ کیا گیا، نبوت کو ڈی گریڈ کیا گیا. اور وہ ایسا روزہ جو ہے خدا کے کلام میں اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی اور لوگ جھوٹے گواہوں کو شامل کیا گیا اور پھر ایک شخص کا جو ہے قتل عام کر دیا گیا. اس نے کفر بکا ہے. تو خدا کا کلام ہمیں ایسے کریکٹر سے بھی بیان کرتا ہے. لیکن ایک بات اور بھی بڑی انڈرسٹینڈنگ کی ہے، کیونکہ ہم جب پوزیٹیو لوگوں پر بات کریں گے تو پھر منادی بھی پوزیٹیو ہوگی، ذہن بھی پوزیٹیو ہوگا. آمین. اور سوچیں بھی کیا ہوں گی. اگر منفی لوگوں کی بات کریں گے تو پھر تعلیم بھی کیا بن جائے گی؟ منفی بن جائے گی. ہے ذہن بھی کیا بن جائے گا؟ منفی بن جائے گا. اب کوئی بندہ سوچ کے بیٹھ جائے دو نے تو اتنی شادیاں کر لی ہیں تو پھر منفی سوچ میں وہ چلا گیا نا. پوزیٹیو باتوں پر، کیونکہ دیکھیں خدا جو ہے اس کے بارے میں واضح اس کو وہ کہہ رہا ہے اگر کسی نے کچھ کیا ایسا ملے تو کیا خدا نے چھوڑا ہے اس کو؟ کیا خدا دیکھیں یہی میں ایک سوال جو کئی سالوں سے میرے اندر جنم لے رہا تھا، میں نے اس سال کے غالباً کچھ دن پہلے جو ہے اس کا جواب مجھے کئی سالوں کے بعد سمجھ لگی. کیا وجہ تھی کہ خدا جو ہے وہ ہر بندے کی زندگی کے بارے میں جو گناہ کرتا ہے اس کو ملامت کر رہا ہے. خدا کا کلام کیوں کرداروں کی بات کرتا ہے؟ اور پھر مجھے 5 پوائنٹ سمجھ لگے اس میں کیا خدا کا منصوبہ تھا ان ساری باتوں کے باوجود. اور اس میں ایک ٹیچنگ سیشن جب ہم شروع کریں گے عنوان کے اوپر یسوع کی ذات کو بیان کریں گے، پھر ہم پچھلی چیزوں کی بھی طرف جائیں گے کہ مسیح کو آنے کی ضرورت کیوں پڑی تھی. تو ایک ٹیچنگ جو ہے ہم اس کے اوپر باقاعدہ ایک شروع کریں گے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یسوع مسیح کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا. سوال ہے نا، یسوع کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا تو کیوں نہیں چل سکتا؟ اس کو ہم گہرے طور پہ سمجھیں گے، پھر ہم کریکٹرز پر بات کریں گے. لیکن ابھی اس پر جو اس بات پر زور دیا جا رہا ہے اب دوسرے باب کے روزے کی ضرورت کیا ہے، کیوں روزہ ضروری ہے. کیونکہ ایک بڑی روحانی سوچ کے اندر، ایک روحانی انڈرسٹینڈنگ کے اندر جو ہے وہ خدا کا بندہ یوئیل نبی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے وہ؟ اور وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ دوسری آیت میں لکھا ہے اسی کے اندر، اے بڑھو سنو، اے زمین کے سب باشندو کان لگاؤ. اے بڑھو کیا کرو؟ اور اے زمین کے کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا کہ تم اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کرو اور تمہاری اولاد اپنی اولاد سے اور ان کی اولاد اپنی نسل سے بیان کرے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک گول سے بچا اسے دوسرا گول نکل گیا، اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا گول چھٹ کر گیا، اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا گول کھا گیا. اے متوالو جاگو اور ماتم کرو، اے میں نوشی کرنے والو نئی میں کے لیے چلاؤ. کیا کرو؟ کیونکہ وہ تمہارے منہ سے
छिन गई, क्योंकि मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ आई है जिसके लोग जोरावर और बेशुमार हैं, उनके दांत शेरे बबड़ के से हैं, उनकी दाढ़ें शेरनी की सी हैं, उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उछाड़ डाला और मेरे अंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला है। क्या किया है? मेरे अंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला। उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया, उनकी डालियां सफेद निकल आई। तुम मातम करो जिस तरह दुल्हन अपने जवानी के शोहर के लिए टाट ओढ़ कर मातम करती है, और नजर की कुर्बानी और तपावन खुदावंद के घर से मकूफ हो गए। खुदावंद के खिदमत गुजार काहिन मातम करते हैं, खेत उजड़ गए, जमीन मातम करती है, क्योंकि गल्ला खराब हो गया, नई मैं खत्म हो गई और रोगन जाया हो गया। फिर ए किसानों, ए पाकिस्तान के बागबानों, नोहा करो, क्योंकि और मैदान के तैयार खेत बर्बाद हो गए हैं। एक बड़ी बर्बादी देख रहा है। क्या कर रहा है? एक बर्बादी देख रहा है। और बर्बादी देखिए कैसी है, टिड्डियों के एक तशबीहाती तौर पर बयान किया गया है। फिर वो कहता है कौन जो है वो टिड्डियों की मानिंद। और आपको पता है टिड्डियों के बाबत हमने एक सरमन भी सीखा है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी, आप वहां से भी देखें। उसमें मैंने टिड्डियों के बारे में तफसील से बयान किया गया है, उसकी किस्म, ये हमला कैसे करती हैं, और फिर हमें इसका हमला क्या नजर आता है कि खुदा ने जब मिस्र पर आफतें भेजी, टिड्डियों को शिकस्त, टिड्डियों के वसीला से जब मुल्क मिस्र में एक मुसीबत आई, तो लिखा है टिड्डियां क्या कर जाएंगी? दरख्तों को चट कर जाएंगी। तो यहाँ कौन से तस्वीर दी जा रही है? फिर क्या कहा जा रहा है कि भाई आगे एक बड़ी वजाहत हमें नजर आ रही है कि खुदावंद के घर से क्या है? तपावन नजर की कुर्बानी क्या हो गई है? मकूफ हो गई है, रोगन जाया हो गया है, फसलें क्या हो गई हैं? जाया बर्बाद हो गई हैं। किसानों को कहा गया अंजीर का दरख्त क्या है? और यहाँ से अंजीर को एक तशबीहाती तौर पर भी बयान किया गया है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उसकी डालियां तोड़ दी गई। खुदा के कलाम को समझने के लिए उसको तशबीहाती तौर पर जो चीजें बयान की गई हैं, इसको भी जानना बड़ा जरूरी है। तशबीहाती तौर पर जो है यहाँ पर एक बात की जा रही है, और फिर जब सारी चीजों को देखने के बाद अगर आप 11वीं आयत से 12वीं आयत में क्या लिखा है? ताकि खुश्क हो गई और अंजीर का दरख्त मुरझा गया, अनार और खजूर और सेब के दरख्त, हाँ मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए, और बनी आदम से खुशी जाती रही। ऐ कहनों कमरे कस कर मातम करो। फिर वो दावत दे रहा है। वजह उसके सामने क्या है? एक बड़ी तबाही। वजह क्या है? एक बड़ी तबाही। आज हम जिस जमाने में गुजर रहे हैं, क्या यहाँ तबाही हमें नजर नहीं आ रही? क्या नहीं हो रहा? हर चीज इंसान की दर्जत से बाहर हो रही है। किसान बेचारे पूरा साल मेहनत करते हैं, वो रिजल्ट अब नहीं रहे। हर एक चीज जो है, पाकिस्तान खराब हो रहे हैं, घर खराब हो रहे हैं, जिंदगियां खराब हो रही हैं, मियां बीवी के रिलेशन खराब हो रहे हैं, जवान बेटियां जो हैं वो अपने शौहरों के लिए मातम कर रही हैं। हम जिस जमाना में जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस हालात को जब खुदा के बंदा ने देखा तो वो चला उठा और वो बुलाहट दे रहा है, वो कालीन दे रहा है, वो दावत दे रहा है, और दावत दे रहा है खुदा के लोगों को। 12वीं 13वीं आयत में वो कहता है कहनों कमरे कस कर मातम करो। क्या करो? कमरे कस कर मातम करो। कमरे कस कर मातम करो। ए मज़बा पर खिदमत करने वालों वाह फेरा करो। ए मेरे खुदा के खादमों आओ। क्या करो? नाइट प्रेयर स्टार्ट करो। क्या करो? रात भर क्या कह रहे हैं? टाट ओढ़ो, क्योंकि नजर की कुर्बानी और तपावन खुदा के घर से मकूफ हो गए, और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। इसका मतलब है लैदा करना। खुदावंद यीशु मसीह ने
अपने शागिर्दों को कहा मैं तुम्हें मुकद्दस करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं था कि वो नापाक से, बल्कि उसने कहा मैं तुम्हें लहदा करता हूँ। क्या करता हूँ? ये नहीं बार बार लहदा होने की बात हो रही है, बार बार सेपरेट होने की बात हो रही है, बार बार लहदा होने का जिक्र हो रहा है। इसमें हर शख्स को, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, काहिनों तक, खादमों तक, हर मकतबा फिक्र को दावत दी जा रही है कि आओ एक दिन क्या करो, मुकद्दस करो। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिर वो इस बात पर जोर देता है क्यों मुकद्दस करो। पहले वो तबाही की तरफ गया, यानी जो बाहर से आ रही है तबाही, क्या आ रही है? बाहर से आ रही है। फिर जब उसने और जाके बात की, अगर आप 15वीं आयत से पढ़े तो अंदर की तबाही की तरफ खुदा का बंदा इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? बाहर कौन से तबाही आ रही है और अंदर की तबाही क्या है? यहाँ पर 15वीं आयत में लिखा है उस रोज पर अफसोस क्योंकि खुदावंद का जोर नजदीक है और वो कादरे मुतलिक की तरफ से बड़ी हलाकत की मालिक है। क्या हमारी आंखों के सामने रोजी मकूफ नहीं हुई? क्या कहते हैं? हमारी आंखों के सामने रोजी मकूफ नहीं, रोजी मकूफ नहीं। और हमारे खुदा के घर से खुशी और शादमानी जाती नहीं रही। आज लोग मजबूरियों से इबादत कर रहे हैं, आवाजारी के साथ इबादत कर रहे हैं। वो फीलिंग्स, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर च। क्या रहा है? हमारे खुदा के घर से खुशी और शादमानी जाती नहीं रही। सवाल पूछ रहा है क्यों मुकद्दस करो? ताकि लोगों के दिल फिर खुदा की तरफ लग जाए हैं, उनका ध्यान खुदा की तरफ लग जाए, उनका जहन खुदा की तरफ लग जाए, उनका फोकस खुदा की तरफ लग जाए। और फिर वो आगे कहता है, वो क्यों इस बात पर कहता है? रूहानी तौर पर हालत लोगों की ये है, फिर बीच ढीलों के नीचे सड़ गया। ओहो, क्या हो गया? बोया तो गया, गई नहीं, सड़ गया। और गले खाने खाली पड़े हैं। क्या है? आज घरों के भी हैं, मुल्कों के भी हैं, कौमों के भी हैं। इस कोरोना ने फड़ के ऐसी तबाही फेरी है, खाली हो गए हैं खाने, गले खाली हो गए हैं। और इससे अच्छा ये था कि इन खतों को बढ़ा जाता, इनको और बनाया जाता। क्योंकि याद है कि यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दी थी, एक तमसील कही थी एक शख्स के बारे में जिसकी फसल बहुत, उसने कहा अब मैं क्या करूंगा, नई कोठरियों को बनाऊंगा। ये नयों का बनाना एक इशारे की तरफ लेकर जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाता है। और न सिर्फ यहां पर लिखा है खत्ते तोड़ डाले गए क्योंकि खेती सूख गई, और जानवर कैसे और गाय बैल के गले परेशान है क्योंकि उनके लिए भेड़ों के गले नेस हो गए हैं। ऐ खुदावंद तेरे हुजूर फरियाद करता हूँ। क्या करता हूँ? अब वो जब दुआ रोजे की तालीम दे रहा है, कहता है एक दिन रोजे के लिए क्या करो, क्यों करो? वजह देखे कितनी बड़ी वजह सामने है, मकसद देखे कितना बड़ा मकसद सामने है। वो कौमी तौर पर, अंदरूनी तौर पर इन हालात को जब देखता है तो वो कहता है आओ क्या करो, खादमों आओ, बच्चों आओ, बुजुर्गों आओ, क्या करो, वावेला करो। फिर से लाइट स्प्रे की जरूरत है, फिर से और ज्यादा कुव्वत की जरूरत है, और ज्यादा दुआ की जरूरत है। और फिर याद रखिए जब खुदा के लोग जो हैं वो दुआ करेंगे, जब वो नरसिंगा फूंकेंगे, तो उसके बाद खुदा एक चेंज ले आएगा। हालेलुया। और वो चेंज क्या होगा, वो बरकतें क्या होंगी, मैं उसकी तरफ अब आपको लेकर जाना चाहता हूं। हम चाहते हैं ये बरकतें मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर हो, हम चाहते हैं ये ब्लेसिंग मेरे और आपके घराने के अंदर हो, हम चाहते हैं ये ब्लेसिंग हमारे मुल्क के अंदर हो,
तो हमें कलीसिया बतौर ईमानदार जो है इस बात को जानना और समझना है, क्योंकि जब हम 15वीं आयत के मुताबिक खुदावंद के हुजूर में झुकेंगे, ये किताब जो है पहले हलाकत और एक बड़ी तबाही के बाद एक बहाली की तरफ लेकर चली जाती है। हालेलुया, आमीन। हलाकत के बाद क्या लेकर जाती है? बड़ी बहाली की तरफ, खुशहाली की तरफ लेकर जाती है। और ये बहाली और खुशहाली का मुकाशफा जो है वो योएल नबी के सहीफे में मौजूद है। अगर कोई खुशहाली देखना चाहता है, अगर कोई रूहानी बहाली देखना चाहता है, अगर कोई खुदा की कुदरत को देखना चाहता है और वो इन ब्लेसिंग को, प्रे और फास्टिंग की ब्लेसिंग को अपनी खानदानी जिंदगी में, शख्सी जिंदगी में रिसीव करना चाहता है, तो उसको दावत दी गई है, तुम लोगों को जमा करो। क्या करो? जमात को मुकद्दस करो और बुजुर्गों को इकट्ठा करो। क्या करो? बुजुर्गों को, बच्चों और चीखवारों को भी फराहम करो। और फिर एक बड़ी बात हमें नजर आ रही है, फिर इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका रिजल्ट हमारी जिंदगियों में क्या होगा। खुदा का कलाम फिर कहता है, उसकी पहली बरकत क्या होगी? लिख लीजिए, खुदा हम पर रहम करेगा। हालेलुया, आमीन। अगर चाहते हैं खुदा क्या करे? रहम करे। तो ये रहम उनको हासिल होगा, ये रहम उनको, उन खानदानों पर खुदा की फेवर, ये खुदा का रहम रूहानी मीनिंग के अंदर बहुत बड़ी बरकतें रखता है। इसके अंदर बहुत कुछ है, इस रहम के अंदर। ये रहम जो है, ये तरस जो है खुदा का, उन्हीं खानदानों पर, जिंदगियों पर, मुल्कों पर नाज़िल होगा जब हमारे बच्चे जो हैं वो इस बात को समझेंगे। आमीन। हमारे बुजुर्ग समझेंगे, फिर कौमों पर रहम होगा। और दूसरी बात क्या होगी? खुदा की मिरास की तहीन नहीं होगी। किसकी? खुदा की मिरास। हम क्या है? खुदा की मिरास है, खुदा के लोग हैं हम। आज क्या हो रहा है? खुदा के लोगों की, इनकी तहीन हो रही है। हमारी बच्चियों को जबरदस्ती जो है उनके साथ जाती की जाती है। लिखा, ये किसकी तहीन है? खुदा के लोगों की। ये मिरास की तहीन है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर फीलिंग हो, दर्द हो हमारे अंदर, जज्बात हो हमारे अंदर। हम इस बात को जाने और समझे, इस दर्द को ले अपने अंदर, तो दूसरी ब्लेसिंग ये होगी, याद रखिए, खुदा का रहम जारी होगा। और दूसरी दुआ रोजे की बरकत ये होगी, खुदा की मिरास की तहीन नहीं होगी। हालेलुया, आमीन। खुदा के लोग जहां पर भी होंगे, जहां पर भी रहेंगे, खुदा की मदद उनके साथ होगी। आमीन। खुदा की फेवर उनके साथ होगी, उसका हाथ उन पर बड़ा रहेगा। और तीसरी बरकत क्या होगी? नाज। तीसरी बरकत हमें जो नजर आ रही है 19 आयत के अंदर, फिर खुदावंद अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा। हालेलुया, आमीन। क्या करूंगा? तुमको अनाज, नई मैं का मुकाशफा जो है एक लहदा सा बड़ा मजमून है। नई मैं जो है ये रूहानी बरकतों को और शादमानी को और खुदा एक खुशी को जाहिर करती है। आमीन। नई मैं का जिक्र जहां जहां आप पढ़ेंगे ना खुदा के कलाम में, इसके मीनिंग जो है वो और है। तो खुदा कहता है क्या होगा? नाज और तेल की बरकत। कौन सी बरकत? नाज और तेल की बरकत। नाज और तेल की बरकत, यानी खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों पर जो बरकत अंडेलेगा, ब्लेसिंग अंडेलेगा। ये तीसरी बड़ी बरकत जो है, ये किसके रिजल्ट, किसकी वजह से मिल रही है? जब दुआ और रोजे में हम झुकेंगे। आमीन। खुदा का रहम होगा। क्या होगा? मिरास की तहीन नहीं होगी। और हमारे बच्चे जो हैं ये भी खुदा की मिरास है। ये क्या ना, लाद खुदा की तरफ से क्या है? तो क्या आज ये तहीन गलियों में नहीं हो रही? माँ बाप की तहीन नहीं हो रही? खुदा के लोगों की तहीन नहीं हो रही? ये मिरास की तहीन उस वक्त नहीं होगी जब हम दुआ और रोजे मसलों पर बैठना शुरू हो जाएंगे। इसकी ब्लेसिंग्स दुआ और रोजा की हमारी जिंदगियों पर नाज़िल होगी। और फिर अगली बरकत, चौथी बरकत है, चरागाहें सब्ज़ होंगी। आमीन। चरागाहें क्या होंगी? और शुमाली लश्कर तुमसे दूर करूंगा और इस खुश्क बियाबान को हाँक दूंगा। उसके अगले मशरिकी समंदर में और पिछले मगरबी समंदर में होंगे। इससे बदबू उठेगी और
फूलत फैलेगी क्योंकि उसने बड़ी ए जमीन और खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावन ने बड़े बड़े काम किए हैं ए दस्ती जानवरों और क्योंकि बियाबान की चरागाह सब्ज होती है। आमीन। हरियाली हरियाली जो है एक बहाली को जाहिर करती है। आमीन। तो ये बहाली जो हरियाली जो है ये चेहरों पे भी अंदर भी और जमीन पर भी उस वक्त होगी। फिर अगली बड़ी बरकत में 22 आयत के अंदर मिलती है, लिखा है अंजीर और ताक अपनी पूरी पैदावार और दरख्त अपना फल लाते हैं और अंजीर और ताक अपनी पूरी पैदावार देते हैं। उस वक्त क्या होगा कि जो हम मेहनत करेंगे उसका हमें पूरा पूरा हासिल मिलेगा। आमीन। क्या करेंगे? जो हम मेहनत करेंगे कब मिलेगा? पूरा हासिल। अबर टाइम लगाने से मिलेगा कि दुआ में वक्त गुजारने से मिलेगा? आमीन। कई दफा लोग जो है वो 6 घंटे ओवर टाइम जो है अपनी जरूरतों के लिए कर लेते हैं, पर वो खुदा से कभी बरकतों के ताबे नहीं होते। वो खुदा से बरकत लेने के लिए अपने आप को पेश नहीं करते। वो इतवार वाले दिन भी दिहाड़ी पे चले जाएंगे, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं, पर वो खुदावंद यीशु के कदमों में नहीं आएंगे। वो जो थोड़ा है, जिसमें वो 5 रोटियां 2 मछलियां यीशु मसीह के पास है, क्या हो गई? मल्टीप्लाई होगी, बरकत में बदल गई। आमीन। तो वो दुआओं पर फोकस नहीं करेंगे। तो याद रखिए फिर अगली बरकत क्या है? 25 आयत क्या बयान करती है? और इन वर्षों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई। हाँ, क्या हुआ? मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई और मलख निकल और खाकर मैं तुमको वापिस दूंगा। हालेलुया। आमीन। यानी वो नुकसान जो हुआ है क्या करेगा? और आपको पता है खुदा नुकसान को बढ़ता है जब लोग खुदा से प्यार करते हैं। आप कभी शनीनी औरत को पढ़िएगा, हमें पहले दूसरे सलातीन के अंदर गालिबन 4 बाब के अंदर एक औरत का जिक्र मिलता है। जब मर्द खुदा लिशा शनीम के अंदर गया तो एक औरत वहां पर जो खुदा से प्यार करने वाली थी, उसने पादरी साहब को देखा, बड़ा अच्छा कलाम की मुनादी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा खुदा का जबरदस्त खादम है। रोटी खाने पर क्या किया? उसको मजबूर किया। और जब वो अपने फिर उसने हम देखते हैं उसने कोठी बनवा दी, खुदा ने उसे औलाद बेटे की बरकत भी दी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? वो औरत जो थी वो खुशखसाली की वजह से क्या कर गई? इलाका छोड़कर चली गई। पैदावार वाली अच्छी खाती पीती औरत थी। और जब भाई ना, तो क्या हुआ? कब्जा भी हो गया घर पे, फसलें भी। क्या हुआ? कब्जा हो गया, फसलें भी, यानी कि नुकसान हो गया बहुत बड़ा। घर पे कब्जा, फसलों पे कब्जा, हर चीज पे कब्जा हो गया। जब भाई ना, तो फिर जहाजी ने, जब लिशा गुदामुन में सो गया तो जहाजी को बादशाह ने बुलाया। उसने कहा मुझे नबी के बारे में बता, उसने क्या क्या किया था? उसने बताया एक औरत थी जिसने नबी के साथ क्या की थी? नेकी की थी, उसकी खिदमत की थी। उसने कहा अच्छा। जब वो ये बातें कर रहा था महल के अंदर, वो औरत भी अपने बेटे के साथ मुकदमा लेके बादशाह के पास आके तो अगले हिस्से को पढ़े तो कहने लगी क्या जहाज चला उठा, यही औरत है। बादशाह ने कहा ओ ये औरत है, अच्छा इसने नहीं भी बोया, पहले इसके घर का कब्जा इसको वापस दो। इसने जो इतना नहीं बोया उसकी पूरी पैदावार का हिसाब लगो, उसको वो भी दे दो। आमीन। जो उसने नहीं बोया था वो भी उसको मिल गया। हालेलुया। आमीन। आमीन। ब्लेसिंग्स, खुदा के साथ चलने की ब्लेसिंग्स, खुदा के साथ करने के लिखा है मैं तुम्हारे नुकसान को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। क्या करूंगा? पूरा करूंगा। तुम्हारे नुकसान को पूरा करूंगा। और फिर कलाम में लिखा है 26 आयत में, और तुम खूब खाओगे। क्या करोगे? तुम खूब खाओगे। और एक बड़ी मजे की आयत है, शरीर खाता और शेर नहीं होता। हाँ, शरीर और फिर भी शरारत में आते करके थोड़ा ज्यादा मैं खा के नहीं गया, हम इनका लभी हुई नहीं, सानू किसे पूछा ही नहीं। ये भी अजीब सी बात है, कलाम की गल्लां वाज़िया नहीं। तुम खाओगे, क्या खाओगे? थोड़ा खूब खाओगे। क्या करोगे? और क्या होगे? रोजोगे भी। तो याद है जब खुदा के घर को नजरअंदाज किया गया तो खुदा ने उनको बताया तुम खाते हो, तुम शेर
नहीं होते, तुम पहनते हो गरम नहीं होते। तुम सराफदार थैली में क्या करते हो, जमा करते हो। तो खुदा के कलाम में, और फिर अब ये इतनी बरकत है इस किताब के अंदर। मैं एक दो और बातें करके थोड़ा दुआ में हम वक्त बसर करेंगे, क्योंकि जो कुछ सीखा है हम उसको अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज करेंगे। तो इसको ज़रा पढ़ें, इस जोएल की किताब को पढ़ें। तो इस किताब में इतनी ज़्यादा बरकत है, जिस तरह आप इसको लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने ये पॉइंट निकाले, आप भी देखिए। और फिर अगर क्या लिखा है, तुम खाओगे और क्या होगे, शेर होगे। और फिर खुदा का कलाम कहता है तुम शर्मिंदा ना होंगे। हालेलुया, आमीन। आमीन। और मेरे लोग शर्मिंदा ना होंगे। और 27 आयत कहती है, तब तुम जानोगे मैं इस्राएल के दरमियान हूँ और मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, कोई दूसरा नहीं। मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। आमीन। और अगली बरकत है, उसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर क्या करूंगा। और आपको याद है जब पेंतिकोस के दिन कलीसिया दुआ और रोज़ा के अंदर बैठी थी, लिखा वो मकान हिल गया और वो रूहुल कुद्स से बढ़ गए। हालेलुया, आमीन। यानी प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स खुदा के कलाम के अंदर इस किताब में इतनी ज्यादा बरकतें हैं। और उन बरकतों के लिए क्या करना पड़ेगा, सयून में नरसिंगा फूंको, रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। किसके लिए, रोजा के लिए। और लिखा है मुकद्दस तुम लोगों को जमा करो। क्या करो, तुम लोगों को जमा करो। इधर जमा करने के लिए पादरी साहब का काम है, ऐसी किसी ने नहीं कहना चाहते। याद रखिए, वो कलीसियाएं ग्रोथ करते हैं जहाँ जिसके जो मेंबर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, वो लोगों को कायल करते हैं। याद रखिए, कहते हैं ना, कलवरी दे सहारे पापी बच गए, जाना रुड़ गईयां तां ते तौफीक सानू वड्डा। ये हौसले दी गल है, ये हौसला हर बंदे को हो ही नहीं सकता। दे वड्डा जाना रुड़ गईयां तां फड़ के लाइए किनारे, लाइए किनारे। रुड़ जे सानू कहता हौसले नहीं है। दे तौफीक सानू वड्डा हौसला करिए, ये हौसले की बात है। इसलिए ये बरकत, जितनी भी बरकत है ये कलाम में, अगर हम चाहते हैं खुदा रहम करे, क्या करे, मिरास की तहीर नाज और दही में और तेल की बरकत दे। आमीन। चरागाहें सब्ज हो जाएं, रंजीर और ताक का हासिल क्या हो, जाया ना हो, बल्कि पूरा पूरा मिले। आमीन। नुकसान पूरा हो, बरसों का नुकसान, कौन सा, बरसों का नुकसान, बरसों का नुकसान, खाएं और क्या हो जाए, खुदा खूब खाने के लिए दे और खूब शेर होने का फजल खुदा दे। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। अगर आप इजीली खड़े हो सकते हैं, दुआया जहन के अंदर आ जाइए। दुआया